Praise the Lord. Praise the Lord. Wonderful. It's so nice to be in the house of the Lord. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में बहुत आनंदित हैं हम रह करके. Are you all glad today? A very sad yes. Are you all glad today? Yes. So let me see that smiling face of yours. We are all, it's so nice to be in the fellowship of brothers and sisters in the house of the Lord. और परमेश्वर के उपस्थिति में हम भाई बहनों की इस संगति में रहना हमारे लिए बहुत आनंद की बात है. And it is a very interesting series that we are going through. और हम जो सीरीज के ऊपर मनन करें ये काफी रोमांचक एक सीरीज है. Can anybody tell me what is the series? क्या कोई बता सकते हैं ये सीरीज क्या है? Following Christ. What does it mean to follow Christ? प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करने का अर्थ क्या है? You might say it is very simple. We are all followers of Christ and we have been following Christ for so many years. हम इसे आसानी से कह सकते हैं कि हम तो कई सालों से प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं. And there are still so many things that we are not aware of. लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे बातें हैं जिसके विषय में हम अज्ञान हैं. And this series has been a wonderful journey into exploring those things. और ये जो सीरीज ये जो श्रृंखला पर हम मनन करें ये हमारे लिए एक अच्छी मौका है कि हम उन चीजों को हम जान सकें. I don't know about you, but myself and Pastor Munova, we are learning a lot through this series. मुझे आपके बारे में नहीं पता लेकिन मैं और पास्टर मनोवा काफी सारी चीजों को सीख रहे हैं इन सीरीज के द्वारा. Every week after week there is a new topic and there is something new that we are learning from. हर हफ्ते एक नया टॉपिक है और उन चीजों से हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं. And I hope and I pray that you also would have realized or learned something new in और this. मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भी इन सीरीज से कुछ नया सीखे होंगे. So we are almost at the midway of our journey through this series. और आज हम इस सीरीज के लगभग मध्य भाग में आ चुके हैं. And there are some very important topics we have already covered. और इसमें हम कुछ बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को हमने अब तक मनन किया है. We started with the cost of following Jesus. हमने शुरू किया था यीशु मसीह को अनुसरण करने का कीमत को लेकर के मनन करते हुए. We learned about what is discipleship. और हमने देखा था कि शिष्यत्व क्या है. Then we learned about the process of learning from Jesus. और हमने ये भी देखा था कि यीशु मसीह से सीखने की प्रक्रिया क्या होती है. And last few weeks we talked about being fruitful and the act of service. और पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा था कि किस प्रकार हम फलवंत होंगे और सेवा की भाव हमारे अंदर कैसे होगा. Now some of us, as I said, might be saying these are things I know about. और शायद हम में से कई लोग कह सकते हैं कि ये सारी बातों तो हम जानते हैं. Maybe I am doing these things right from the beginning. और शायद मैं शुरुआत से ही इन बातों को करता भी आ रहा हूँ. It has been 20 years, 30 years, 40 years I have been a follower of Christ. शायद 20 साल 30 साल 40 साल से मैं प्रभु की अनुसरण कर रहा हूँ. So these things are something I have been doing. It's a part and parcel of life. और ये तो मैं पहले से करके आ रहा हूँ. ये मेरे जीवन का एक भाग है. Yet when we look at our lives, probably there is a lack of fulfillment. और लेकिन फिर भी जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक पूर्ति का या पूर्णता का एक कमी है. We feel that something is missing somewhere. हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हमारे पास रह गया है. We are doing everything, but still there is some gap. Something is missing. और हम सब कुछ तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है. You know, it is like that young rich man who came to Jesus in Matthew chapter 19. He came to Jesus asking the same thing. और ये उस प्रकार है कि वो जवान एक अमीर व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया था. We can see it on the screen, Matthew chapter 19. It is from verses 16 to 22. We all know about this. He is a wealthy person. और इसको मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 में देख सकते हैं. हम इस कहानी के बारे में जानते हैं कि एक बहुत धनवान व्यक्ति था. He probably has all the provisions that he need to live a good life. और शायद उसके पास वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था एक अच्छी जीवन जीने के लिए. Yet he felt something was missing. और फिर भी उसको ये बात लग रही थी कि उनके पास कुछ तो मिसिंग है. He was not satisfied in his life. और वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था. And so he came to Jesus and asked him, what should I do to get eternal तो life? इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से पूछा कि मुझे क्या करना है ताकि मैं अनंत जीवन पा सकूं. And Jesus told him what he already knew. He said, follow the commands, what have been given to you. और यीशु मसीह ने भी उन्हें वही बातों को बताया जो ये धनवान व्यक्ति पहले से जानता था कि नियमों को पालन करो जो तुम्हें दिया गया है. You know, there would be a sense of pride and happiness in this young man when he said,
these I have been doing from a very young age. और शायद जब ये व्यक्ति इस जवाब को दिया था, ये घमंड या एक आनंद उनके मन में था कि ये सारी बातों को तो मैं बचपन से करके आ रहा हूँ। Right? And yet he was not satisfied. He wanted to know what more should I do. लेकिन फिर भी ये अपने जीवन से संतुष्ट नहीं, तो वो जानना चाह रहा था कि मैं और क्या करूं अपने जीवन से। And you know, Jesus gave him a very simple reply. और यीशु मसीह ने उसे एक साधारण जवाब दिया। And he told him to give up everything he has and come and follow और me. यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है उसे गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। We all know that this young man left Jesus very sad. और हम सब जानते हैं कि ये धनवान व्यक्ति यीशु मसीह को बहुत दुख के साथ छोड़कर गया, Because he had a lot of possession. क्योंकि उसके पास बहुत सारे धन था And because he really enjoyed those possessions. और वो उस धन को बहुत उसको एंजॉय कर रहा था, उसे आनंदित था वो, And he didn't want to give up those things. और उन चीजों को वो त्यागने के लिए तैयार नहीं था। Right? Giving up is not so easy. और किसी चीजों को त्यागना ये इतना आसान नहीं है। The world does not recommend us to give up things. और ये दुनिया जो है हमें क्या सिखाती है कि हम किसी चीजों को जल्दी गिव अप ना करें, उसे तुरंत ना छोड़ दें। No, we see this so much in the world around us. और हम इसे हमारे दुनिया में चारों तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं। Right? The very recent wars in Ukraine and Israel, there is an example. They are examples of this understanding of the और world. फिलहाल में जैसे हम देखते हैं यूक्रेन और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, ये सब एक उदाहरण है इस चीज के लिए। We can move to the next slide. Right? The world is not going to prompt us. The world is not going to push us towards giving up. और दुनिया जो है कभी भी हमें किसी चीज को त्याग दो या किसी चीज को छोड़ दो, इस प्रकार हमें नहीं सिखाएगी। The world really prompts us for self-reliance, authority and control. और दुनिया हमेशा हमें स्वयं के अंदर स्वयं काबू में चीजों को रखना, इन्हीं बातों के ऊपर हमें प्रोत्साहन करती है। And that is the reason of all this war and bloodshed in the world around us. और यही वो कारण है कि हम दुनिया भर इस प्रकार की युद्ध को हम देखते हैं। Because surrendering seems illogical. और क्योंकि समर्पण हो जाना, समर्पण करना लोगों के लिए इलॉजिकल बात है। The world thinks when you surrender, you are a weak person. और दुनिया इस प्रकार सोचती है कि जब आप सरेंडर कर लेते हो तो आप एक कमजोर व्यक्ति हो। Somebody powerful has overtaken you. और कोई और व्यक्ति जो आपसे सामर्थ्य है, उसने आपके ऊपर काबू कर लिया है। But today, as we dive into the scriptures, we are going to see a bigger and a greater truth. और आज लेकिन जब हम वचन से मनन करने वाले हैं, हम एक बड़ा और सच्चाई को हम आज देखने वाले हैं। And we will try to understand that true power lies in surrendering. और आज हम देखने वाले हैं कि सही सामर्थ जो है समर्पण होने में है। Right? And it is not just surrendering to anything or anybody, it is surrendering to a higher purpose. और ये किसी के लिए या किसी भी व्यक्ति के अधीन में सरेंडर होना नहीं, लेकिन एक पर्पस के लिए, एक हायर पर्पस के लिए सरेंडर होना, उसके विषय में आज हम देखेंगे। And you will see that the Bible is giving us this contradictory view about surrendering to gain life. और हम देख सकते हैं कि आज हम देखेंगे कि वचन हमें एक विपरीत विचार देती है कि जीवन को पाने के लिए आपको समर्पण होना जरूरी है। You need to surrender your life to get a better life. आपको आपके जीवन को समर्पण करना जरूरी है ताकि आप एक बेहतर जीवन पा सके। So we hope that the scriptures will challenge our thoughts, our conception, our idea about strength and control. और मैं आशा करता हूं कि वचन जो है आज हम देखने वाले हैं वो हमें समझाएगी इस बात को कि किस प्रकार ये जो समर्पण है, हमारे जीवन को समर्पण करना जो है, ये किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक होता है। We will be focusing on the verses from Galatians chapter 2 verse 20. Our next slide will be showing that. और गलातियों की अध्याय 2 और वचन 20 में से हम आज की मनन करेंगे। Right here Paul is saying, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और इस प्रकार लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Now Paul is giving us a picture
picture of surrendering over here. और यहाँ पर पौलुस जो है समर्पण करने का एक तस्वीर हमें दिखाता है। But mostly people do not like this idea or concept of surrendering. और लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रकार की विचार को पसंद नहीं करते हैं जहां पर उन्हें सरेंडर होना होता है। It gives them the sense of losing to someone. और ये उन्हें किसी के सामने हारने की एक भावना को दिखा देता There is है। a feeling that you are giving authority and control to somebody else. और उनके अंदर ऐसे एक विचार आता है कि वे अपने नियंत्रण को किसी और के हाथों में दे रहे हैं। So to the people around, it seems like a weakness. और लोगों के लिए लगता है कि एक कमजोरी है। Right? So they change the word surrendering to a different word. और इसलिए ये लोग समर्पण की ये शब्द को बदल देते हैं किसी और शब्द से। Even in Christian circles, you'll hear this word very often. और ये मसीही बातों में भी हम इस शब्द को ज्यादातर सुनते हैं। Instead of surrendering, we use the word commitment. और समर्पण की जगह हम इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं प्रतिबद्धता। Let us make a commitment to God. और हम प्रभु के साथ एक कमिटमेंट पे आ जाएंगे। Let us make a commitment to pray on a weekly basis. और हम हर हफ्ते प्रार्थना करने के लिए कमिटमेंट पर करेंगे। Let us make a commitment to study the Bible. और वचन पढ़ने के लिए हम एक कमिटमेंट करेंगे। Right? So instead of surrendering, the word commitment became more common even in Christian circles. समर्पण की जगह ये जो कमिटमेंट जो या प्रतिबद्धता ये शब्द है ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। You know, at first it sounds like similar. It is okay. Both the words are meaning same. पहले हमें लगता है कि दोनों शब्द तो ठीक है, दोनों एक ही मतलब को लाता है। But if you try to go into deeper understanding of the word, you will find that there is a difference. लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं, इसको सही रीति से समझने की प्रयास करते हैं, तो इसमें आपको अलग मतलब निकल So कर I have आता on the है। screen the word commitment and surrender. Let's understand what is commitment. और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हम कमिटमेंट और सरेंडर इनमें क्या फर्क है उसे हम देखेंगे। Few things when I look at commitment, it is what I want to do for God. और कुछ बातें जो जब मैं कमिटमेंट के बारे में सोचता हूं तो मैं क्या सोचता हूं कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करूं। What I can or what I have achieved for God. और मैं परमेश्वर के लिए क्या हासिल कर लिए या क्या हासिल कर सकता हूं, इस पर ध्यान देता है। Here the focus is on your diligence, your capability, how much you can do. और यहाँ पर ध्यान जो है आपके परिश्रम के ऊपर लागू होती है कि आप कितना प्रभु के लिए कर सकते In हैं। everything that you're doing, the focus is on yourself, self-centered living. और जो भी आप करते हैं उसमें ध्यान आपके अंदर होता है, खुद के ऊपर स्वयं केंद्रित बात होती है ये। I try to see what are the sacrifices I am doing for God. और मैं क्या क्या बलिदान या क्या क्या सैक्रिफाइस मैंने प्रभु के लिए किया है उस पर ध्यान होती है। This is when you say you are committed for God. और जब आप कहते हैं कि हम प्रभु के लिए कमिटेड हैं तो ये उसका मतलब आता है। But when we look at surrendering, it's altogether a different picture. लेकिन जब आप समर्पण की बात करते हैं ये बिल्कुल अलग तस्वीर है। It is not about me. It is what God wants me to do. अब ये मेरे विषय में नहीं रहा, लेकिन इस पर अभी इस बात को ध्यान दिया जाता है कि प्रभु परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। Right? What God has done in my life, I cannot do anything on my own. प्रभु ने मेरे जीवन में क्या दिया है, क्या किया है, उस पर ध्यान होगा और हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि हम अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। Right? The focus is not on my strength, my capabilities, my resources, but the focus is more on obedience. अब आपका ध्यान जो है आपकी ताकत पर नहीं है, लेकिन अब आपका ध्यान आपके आज्ञा पालन करने में है। I'm not living my life as a self-centered, looking at myself, but I'm living my life as a Christ-centered अब life. मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं रखूंगा बल्कि यीशु मसीह पर ध्यान रखूंगा। I do not count my sacrifices, but I only look at His sacrifice on the cross. और मैंने जो खोया है उस पर मैं ध्यान नहीं रखूंगा, लेकिन मैं सिर्फ क्रूस की ओर ध्यान लगाऊंगा, यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। My dear church, commitment is just a word which is misleading. You are still in control. और ये जो कमिटमेंट, ये जो शब्द जो है आपको मिसलीड करता है इस बात को आपको समझाते हुए कि आप अभी भी कंट्रोल में हो। Right? You can commit to prayers, you can commit to Bible study, you can commit to coming to church, you can commit to giving for the church, but you are still in control. और आप कमिट कर सकते हो कि चर्च आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी कंट्रोल आपके हाथ में ही है। Whatever you choose, you want to do, you commit for that. आप जो भी चुनते हो कि आप उसे करेंगे
तो उसके लिए आप कमिट कर रहे हैं। You know, the world also uses this word very frequently, but it is often misleading. और दुनिया भी इस शब्द को ज्यादातर इस्तेमाल करती है और ये ज्यादातर मिसलीडिंग होता है, गलत होता है। Right, a famous Bollywood actor in a movie, he makes a statement that when I make a commitment, I do not even listen to myself. और आपने ये इस डायलॉग को अपने मूवी में देखा होगा कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप को भी नहीं सुनता। Which is very misleading because commitment means you are listening to yourself, what you are going to commit to. क्योंकि कमिटमेंट का अर्थ ही क्या है कि आप अपने आप से कहते हो कि आप क्या करने जा रहे हो। You decide how much and what you want to do. आप डिसाइड करते हो कि कितना और क्या आपको करना है। The decision still lies with you. और जो डिसीजन, निर्णय जो है अभी भी आपके हाथ में ही है। And when you are in control means if you don't want to do it, you can avoid it. और जब आप नियंत्रण में हो, इसका अर्थ क्या है? यदि आप करना नहीं चाहेंगे तो आप नहीं करेंगे। And I am sure each one of us have got lot of examples of commitments that have been made but not fulfilled. और मैं जानता हूं कि आप सबके पास ऐसे उदाहरण होगी कि जो कमिटमेंट किया गया है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। Even commitments that we make in our marriages. और जो शादियों में भी जो कमिटमेंट हम करते हैं, Or the resolutions we make at the beginning of the year, whatever we want to do. और जो साल की शुरुआत में हम जो कमिटमेंट करते हैं या जो भी निर्णय लेते हैं, The reason is we are focusing on our own self. क्यों? कारण क्या है? कारण सिर्फ हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित रखते Right? हैं। We have been trying to run our lives on our own. हम अपने जीवन को स्वयं चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। We are still in the driver's seat. हम अभी भी ड्राइवर की सीट में हम स्वयं बैठे हुए हैं। So whatever you commit, you decide you want to do it or you don't want to do it. और आप जो भी कमिट करते हैं तो आप स्वयं निर्णय लेते हैं कि उसे करें या ना करें। But surrender is totally different. लेकिन समर्पण होना बिल्कुल अलग है। If someone holds a gun to your head and asks you to surrender, you will not go and tell him, look, I have committed to these things. और यदि किसी व्यक्ति आपके सामने बंदूक लेकर खड़ा है और आपको कहता है कि सरेंडर हो जाओ, तब आप इस प्रकार की बातों को नहीं करेंगे। You simply do as you have been told. और आप सिर्फ उसी बात को करेंगे जिस बात को करने के लिए वो बता रहा है। Your commitment is all gone over there. और वहां पर आपकी कमिटमेंट सब खो गया है, अब चला गया है। Surrender means you obey. समर्पण का अर्थ क्या है? आप आज्ञा मानते हो। Right? You do not look at what is the priority in your life. You do not look at what is the time telling you. You do not look at what your wife has told you. You do what you have been asked to do. समर्पण का अर्थ क्या है? आप समय को नहीं देखोगे, आप खुद क्या विचार कर रहे हो उसको नहीं देखोगे, कोई और क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं लगाएंगे। आपको जो बोला गया है आप सिर्फ उसी को करोगे। So Bible speaks about surrendering and not committing. तो इसलिए वचन हमें समर्पण होने के बारे में बात करती है, ना कि किसी कमिटमेंट देने के बारे We are में। to submit to God. हमें परमेश्वर के सामने समर्पण होना है। He is the boss. He is the ruler. He has the authority over our life. और वही हमारा बॉस है, वही हमारा राजा है और परमेश्वर के पास हमारा सारा अधिकार है। We listen to him. We obey him. हम ये परमेश्वर का सुनते हैं और परमेश्वर की बात को मानते हैं। Ultimately, he is in control. और आखिर में यही बात सच है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। So Bible talks about surrendering, not commitment. और इसलिए वचन सरेंडर के बारे में बात करता है, समर्पण के बारे में बात करता है, ना कि कमिटमेंट के बारे में। So what does it really mean to surrender? तो सच में समर्पण होने का अर्थ क्या है? Surrender is not a sign of weakness. और समर्पण होना जो है हमारी कमजोरी का एक चिन्ह नहीं है, But it is a pathway to progress. It is a pathway to transformation. और लेकिन ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परिवर्तित होते हैं। Bible teaches us that when we surrender our life to Christ, He brings transformation in our life. वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर में समर्पण होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को लाता है। And this transformation is through the spiritual rebirth of our life. और ये बदलाव किस रीति से आएगा? हमारे जीवन में हमारी आत्मिक रीति से हम जब पुनर्जन्म लेते हैं, नया जन्म लेते हैं, उससे होता है। In Galatians, Paul is talking about crucifying your old self to the cross. गलातियों की 2 अध्याय के वचन 20 जिसमें हमने पढ़ा तो वहां पर पौलुस कहता है कि अपना पुराना मनुष्य को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाने के Right? You विषय are में। crucifying your old self to the cross so that Christ can live in you. आप अपने पुराने मनुष्य को क्रूस पर परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चढ़ा देते हो ताकि यीशु मसीह
आप पर जी सके। This surrender brings transformation. और ये जो समर्पण जो है आपके जीवन में परिवर्तन को लाता Right? है। It changes our thinking, it changes our thought process and our perspectives. हमारे सोचने के तरीका, हमारे काम करने के तरीका को ये बदल देता है। Right? So surrendering, first and foremost, surrendering means that you are yielding your control or giving up your तो ownership. सबसे of your पहले life. क्या है, समर्पण का अर्थ क्या है कि आप आपकी नियंत्रण या स्वामी पद को किसी और के लिए छोड़ देते हैं। Right? You are giving up. What are you giving up? आप क्या त्याग रहे हैं यहाँ पर? You are giving up everything that you consider your own. और आप जो कुछ अपना है करके जो सोचते हैं उसे आप छोड़ रहे हैं। Our lives, हमारे जीवन, our possessions, हमारे जो धन दौलत, our time, हमारा समय, our rights on everything, we are giving that up. हर चीज के ऊपर हमारी जो अधिकार है उसे हम त्याग रहे हैं। You know, we are actually acknowledging this, that whatever we own belongs to him. हम इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। We are actually acknowledging that he is in control of everything. हम इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर हर चीजों के ऊपर नियंत्रण में है। He is in control of your current situations or your circumstances, everything. परमेश्वर आपके वर्तमान की जीवन की परिस्थिति के ऊपर वो नियंत्रण में है, इस बात पर हम विश्वास करेंगे। So when we talk about biblically surrendering to God, we are talking about giving up everything that we have, we own, our life, everything. तो जब वचन आधारित समर्पण के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि हम अपने हर अधिकार, हर चीज को हम परमेश्वर के सामने त्याग देते हैं। There is nothing that you can call your own. और वहां पर ऐसे कुछ भी नहीं है जिसे आप अपना करके कह सकते हैं। You know, Bible talks about, Jesus says that if there is something that is holding you which is far greater than the love that you have for me, you are not my disciple. और यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि ऐसी कोई भी बात तुम्हारे जीवन में है जो तुझे मुझसे ज्यादा उसमें लगाव है तो तू मेरे अनुयायी नहीं है। So surrendering is giving up your everything. तो समर्पण का अर्थ है कि सब कुछ संपूर्ण तरीके से समर्पण कर देना। Second thing, when we talk about surrendering, it means taking up God's plan for my life. और समर्पण के विषय में बात करते हुए दूसरी बात यह है कि हमारी योजनाओं को छोड़कर परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन में लेना। I give up my plans, my ambitions, my goals, my visions. I give that up and I take up God's plan, God's goal, God's vision for my life. मैं अपने जीवन में मेरा विचार या मेरी योजना, मेरी बातों को जो मैंने सोच के रखा है उन सब चीजों को मैं छोड़ देता हूं और मैं सिर्फ परमेश्वर की योजना की ओर ध्यान लगाऊंगा। We have to understand that it is really not about what I want for my life, but what God wants for my life. हमें इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये वास्तविकता में इस बात पर केंद्रित है कि परमेश्वर जो मेरे लिए चाहता है, मेरे जीवन के लिए क्या चाहता है, ना कि मैं मेरे जीवन के लिए क्या चाहता हूं। Right? We have to go with the understanding God knows what is best for my life. हमें इस समझ के साथ जाना चाहिए कि परमेश्वर जानता है मेरे जीवन के लिए सबसे उत्तम चीज क्या है। And so I have to give up everything that is holding me from getting what God knows is best for my life. इसलिए मुझे अपने जीवन में जो कुछ मैंने अपने लिए रखा हूं उसे त्यागना चाहिए ताकि परमेश्वर परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में हो सके। It means you and I are left with no choices. और इसका अर्थ है कि मेरे लिए पास और आपके पास कोई चॉइसेस अभी नहीं है। Right? You do not decide. आप निर्णय नहीं करेंगे। You do not decide what you want to do with your life. और आप इस बात को निर्णय नहीं करेंगे कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे You हैं। do not decide what you want to do with your possessions. आप अपने धन दौलत से आप जो करना चाहते हैं वो आप निर्णय नहीं करेंगे। You do not decide about the future. आप भविष्य के बारे में नहीं निर्णय लेंगे। Right? You might say, brother, but that is so difficult. आप सोच सकते हैं कि ये तो काफी मुश्किल है। And that is the reason why I say the word commitment has engulfed us so strongly. इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जो कमिटमेंट की जो शब्द जो है वो हमें पूर्ण तौर पर घेर लिया है। We feel it is our responsibility. हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। We feel that this is something I have to take care of. और ये हमें लगता है कि मुझे स्वयं इन चीजों को करना है। My family, my job, my money, my possession, I have to take control. मेरी परिवार, मेरा नौकरी, मेरे बच्चे, हर चीजों को मुझे नियंत्रण में रखना
करना But है, Bible talks about surrender. लेकिन वचन हमें समर्पण के बारे में बात करती Give है everything up to Him. और जो कुछ भी है उसे परमेश्वर के हाथ में रख You know, दें। when we say the Lord's Prayer, there is a very important line that comes, Thy will be done as it is in heaven and so on earth. और जब हम वो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं उसमें एक लाइन आती है इस प्रकार की, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। As it is in heaven, the will of God, the same will should happen on earth. जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी होना जरूरी है। You think anybody in heaven would be telling God, God, no, not this, please do this? क्या आपको लगता है कि स्वर्ग में कोई और परमेश्वर को कोई आदेश देता है या कोई सलाह देता है कि प्रभु इस प्रकार नहीं, इस रीति से करें? Oh God, this is more important for my life right now, my kids' education, my kids' graduation, or marriage and family, or expenses. We are telling God to do what we want Him to do in our और life. हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु अभी के लिए ये बात जरूरी है, मेरी नौकरी जरूरी है, मेरे बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, इनकी शादी की जरूरत है, इस प्रकार हम अपनी जरूरतों को, अपनी सलाह को परमेश्वर के सामने रख देते हैं। But when we are praying to God, we are saying, Thy will be done on earth as it is in heaven. लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं हम इस बात को कहते हैं कि स्वर्ग में जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। So what are we trying to say? God, in America, in Europe, in Israel, in Ukraine, your will be done. क्या तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में नहीं लेकिन कहीं और, अमेरिका में, इजराइल में, अलग देशों में आपका इच्छा पूरी होने पाए। When I say Thy will be done on earth, that includes me also. जब मैं कहता हूं कि स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, उसमें मैं भी शामिल हूं। It includes my life, my marriage, my possession, my future, my career, everything. और उसमें मेरी जीवन, मेरी परिवार, मेरी शादी, मेरी भविष्य, सब कुछ उसमें शामिलित है। You know, this is actually the way for a happy, blessed and a peaceful life. और यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम एक आशीषित और एक आनंद की जीवन जी सकेंगे। You know, we learned few weeks back Jesus saying, "Take my yoke upon yourself and learn from me." और कुछ हफ्तों पहले हमने इस बात से हमने मनन किया था कि यीशु मसीह जहाँ कहते हैं कि मेरे जुबान तुम्हारे ऊपर उठाओ और मेरी अनुसरण करो। He says, "My yoke is not heavy, it is not burdensome, it is easy." और यीशु मसीह यही कहते हैं कि मेरा जुआ जो है वो बोझ नहीं है, वो हल्का है, वो आसान है। But we are caught up so much in the strife of this world, in the struggles of our life, that we really don't realize it is easy to surrender to God. और हम अपने इस दुनिया के जीवन में हम इतना जुलझे हुए हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर के चलते हैं और हम इस बात को भूल जाते हैं परमेश्वर के सामने समर्पण होना काफी आसान है। God knows that you will be happy, you will be satisfied, you will be fulfilled only when you have surrendered to Him. और परमेश्वर जानता है आप आनंदित होंगे, आप संतुष्ट होंगे सिर्फ जब आप पूर्ण तौर पर समर्पण हो A life which is not lived for the purpose for which it is created will never be fulfilled or satisfied. और जो जीवन उस मकसद के लिए जिया नहीं गया है, जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है, उसमें हमेशा परेशानियां होंगी। So when we give up our control to God, He knows what is best for our life. और जब हम हमारे नियंत्रण परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। Right? When we are surrendering to Him, we are inviting God to take control of my life and to be in the driver's seat. और जब मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर से तो हम परमेश्वर को ये इजाजत देते हैं कि परमेश्वर सब चीजों में नियंत्रण करें, वो हमारे ड्राइवर सीट में बैठे हैं। Please remember, only when you surrender to God will God do what is best for your life. और आप इस बात को ध्यान दें, सिर्फ जब आप परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे तभी परमेश्वर उस चीज को करेगा जिस चीज परमेश्वर करना चाह रहा है। God doesn't force His way into your life. और परमेश्वर की रास्ते को या परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में वो जबरदस्ती नहीं लेकर आएगा। God wants you to willingly surrender to Him. परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं अपने आप समर्पण करें। Right? Only then He works in your life. और सिर्फ तब परमेश्वर आपके जीवन में काम So करेगा। on the screen you can see two things when we are committed or when we are surrendering. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जब आप कमिटेड होते हैं और जब आप सरेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, उसमें क्या फर्क आता है। Right? So when you are committed, you are in control, you are taking care of your life and you are doing things
to make them successful. जब आप कमिट करते हो तो आप सब चीजों को नियंत्रण में रख रहे हो और आप प्रयास कर रहे हो कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो जाए, Everything depends on you. और सब कुछ आप पर निर्भर होता है। So you can imagine the pressure, the burden, the struggles that you have to go through because you are taking care of everything. तो इसलिए आपको ये बात ध्यान देना जरूरी है कि यदि आप अपने अंदर सारे चीजों को रखते हैं या आप कमिट कर रहे हैं तो कितनी प्रेशर को आपको झेलना होता है। And you don't even know whether you have been created for all this or not. और आप इस बात को जानते भी नहीं हैं कि क्या इस बात के लिए आप बनाए गए हो या नहीं। But because you are in the world, because people are looking at you, because family is looking at you, because others are seeing you, you want to prove that you are capable. लेकिन आपको पता है कि दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, परिवार आपको देख रहा है, दूसरे लोग पड़ोसी आपको देख रहे हैं, तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप उसमें सफलता प्राप्त हो जाए। And so you put in efforts, more hard work, more time to make things succeed. और इसलिए आप और परिश्रम करते हैं और मेहनत करते हैं ताकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप सफलता But when you surrender, it is very simple. लेकिन जब आप समर्पण करते हैं ये काफी आसान है। You are giving control to God, आप समर्पण परमेश्वर के हाथों में दे रहे who हैं, knows everything about your life, और जो आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानता who है, knows what talents, what skills and what capabilities he has given you. और वो जानता है कि उसने आपके जीवन में क्या टैलेंट्स दिया है, क्या योग्यताएं आपके जीवन में वो दिया है। So you are giving up control to the one who knows how to make it successful. और आप नियंत्रण उनके हाथों में दे रहे हो जो आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं। He knows he will make it successful. आप जानते हैं कि परमेश्वर उसे सफलता करेंगे। Right? Do you think that God can run your career much more better than you? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बेहतर आपके जीवन को संभाल सकता है? Do you think that God can run your families much more better than you? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बेहतर आपके परिवार को चला सकता है? Do you think God can handle your finances much better than you? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी फाइनेंसेस को और बेटर करा सकता Do you है? think God can handle your sicknesses, your liabilities much better than you? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन की बीमारियों को या आपकी कर्जों को आपसे बेटर हैंडल कर सकता है? In all this, the answer is one and only yes. और इन सब में आपके लिए एक ही जवाब है कि हाँ। But do we surrender to Him? लेकिन सवाल उठता है कि क्या हम सरेंडर होते हैं? Right? What are we doing in our life? हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? Are we so happy with the burdens of our life, with the troubles and the struggles of our life, that we don't want to surrender? क्या हम अपने जीवन की इन सारे परेशानियों में झुलझे हुए हैं कि क्या हम उसमें आनंदित है कि हम इसमें सरेंडर ना करें? Or do we feel that losing control is a bigger problem? I don't want to lose control. क्या आपको ये लगता है कि कंट्रोल मेरे हाथ से खो जाना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, इसलिए मैं कभी कंट्रोल नहीं खोना चाहता हूँ? But see what Jesus says in John 12:24 and 25. और यहाँ पर आप देखिएगा यूहन्ना 12:24 और 25 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. और 24 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक के गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। Right? Jesus is talking about being fruitful. और यहाँ पर यीशु मसीह फलवंत होने के विषय में बात कर रहे हैं। And he is giving us the secret of how can we be fruitful. और यहाँ पर यीशु मसीह वो सीक्रेट बात हमें बताते हैं कि हम कैसे फलवंत हो सकते हैं। If I try to live my life on my own terms, being in control, being in the center of all activities, I will just remain that one single person, one single seed. और यदि मैं सब चीजों को मेरे ऊपर ध्यान रखकर मैं अपने स्वयं कंट्रोल में सब रखूंगा तो मैं सिर्फ एक ही बनकर रहूंगा। But he's saying if you die, that is surrendering. और लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तू मर जाता है यानी समर्पण कर देते हैं, When you surrender and give control to God, He can bring fruits in your life. जब आप समर्पण कर देते हैं और परमेश्वर के हाथ में नियंत्रण को दे देते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से फल लाएगा। Blessings will come when you surrender to God. और आशीषें आएंगे जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण And your life करेंगे। becomes so simple, so easy, so uncomplicated when you give control to God. और आपकी जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा जब आप नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में देंगे। It is a very big relief. और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक
आराम की एक बात है। I've shared this example before. You know, I like driving, I drive my car, but when I'm driving the car, I've got all this stress of looking at the traffic, observing the signal, my wife telling me go slow, bumper ahead. All these are stress in your mind. You are trying to control जब मैं things. गाड़ी चलाता हूँ मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे कितना तेज में जाना है, कहाँ पर क्या है, आगे का पीछे का हर गाड़ियों के ऊपर ध्यान देना, ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। But what a big relief when you call for an Uber and you sit in the passenger seat and the driver is driving. और लेकिन ये कितनी आराम की बात है कि जब आप एक कैब को बुलाते हैं और आप पीछे बैठ जाते हैं और आप आराम करते हैं और कैब ड्राइवर स्वयं चलाता है। It is not your problem anymore. अब वो आपकी समस्या नहीं है। The same thing happened when you surrender to God. He is in the driver's seat. और यही बात सच है, जब आप परमेश्वर के सामने समर्पण करते हैं तो वो अभी चला रहा है। I am not in control. मैं अभी नियंत्रण नहीं कर रहा हूँ। It's not my problems. अब मेरा समस्या नहीं है। It is not my circumstances. ये अभी मेरी परिस्थिति नहीं है। It is not my sickness. अब ये मेरी बीमारी नहीं है। It is not my financial problems. अब ये मेरी आर्थिक समस्या नहीं है। It is not just the future of my kid that I need to take care of और it. ये मेरे बच्चे की भविष्य की बात नहीं है जिससे कि मुझे देखरेख करना है। You know why? Because there is someone greater. There is someone who knows who is in control. ये क्यों आपको पता है? क्योंकि वहां पर कोई और है, परमेश्वर है जो हमसे बड़ा है, वो अभी नियंत्रण में है। And that is where my peace, that is where my joy, that is where my comfort comes from. और वहीं पर मेरी आशा, मेरी आनंद और मेरी शांति मुझे मिलती You know, है। peace and comfort in the midst of trial and tribulations and struggle, it is only by God. और समस्याओं के बीच में, तूफानों के बीच में यदि आपको शांति चाहिए, वो सिर्फ परमेश्वर के पास है। You know, when I give up control, I feel less pressured, or the pressure is very little or no pressure at all to perform. जब मैं मेरे हाथ से नियंत्रण को किसी और को दे देता हूं तो मेरे ऊपर अभी दबाव कम होता है। Right? I don't have to show or put a face to the world that I am trying, doing my best. मुझे अभी दुनिया को एक चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना उत्तम कर रहा हूं। I do not have to fight to protect what I have as my own. और मुझे उस बात के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, जो मेरे पास है उसे मेरे लिए बना के I do रखने not के have to लिए। solve every problem. मुझे हर समस्याओं को सुलझाने की जरूरत नहीं है। Right? I'm not so much concerned about the future, but I enjoy my present with the blessings of God. मुझे भविष्य के विषय में इतना चिंता नहीं है, लेकिन मैं वर्तमान को प्रभु में आनंद के साथ व्यर्थ करूंगा। Right? So you see, there are so many benefits of surrendering to God. और परमेश्वर के सामने समर्पण होने का बहुत सारे आशीषें हैं। And that is when you are inviting His blessings into your life. और वहीं पर समर्पण के द्वारा ही आप परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में बुलाते हैं। But when I'm not surrendering to God, I'm just living my life probably a second best or a third best. और लेकिन जब मैं समर्पण नहीं करता हूं, मैं अपने जीवन को मुझसे जितना हो सके उतना अच्छा जीने की कोशिश कर रहा हूं। You might say, oh, my plans are good, my way of working is good, I manage my family well. You might say all those things. आप शायद कह सकते हैं कि मेरा योजनाएं बहुत अच्छा है, जिस रीति से मैं अपने परिवार को चलाता हूं काफी अच्छा है। Right? But at any given point of time, your plans will always be a second best to God's plan. लेकिन हमेशा आपका योजना जो है परमेश्वर की योजना की उत्तमता के बाद ही आता है। You can never beat the Creator's plan for your life. और आप कभी भी आपके सृष्टिकर्ता की योजना से बेहतर योजना आपके लिए नहीं बना पाएंगे। You know, the Bible is filled with examples of people who have surrendered and the blessings that have been seen because of that. और वचन में हमें कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है जहां पर लोगों ने समर्पण किया है और उसके द्वारा परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त Right? किए हैं। We know the surrender of Abraham for Isaac. और हम अब्राहम के समर्पण आइज़ाक के प्रति हम देखते हैं। Right? Genesis 22 talks about this. God asked Abraham to surrender his only son, which was given as a blessing to him. अब्राहम 22 में उत्पत्ति 22 में हम देख सकते हैं अब्राहम को परमेश्वर कहता है उसकी एकलौता पुत्र को वो बलि देने के लिए, और वहां पर वो समर्पण भी करता है। You know, Abraham's surrender of his only son Isaac shows his trust in God. और अब्राहम
परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को इस रीति से दिखाता है जब वह अपने बेटे को परमेश्वर के सामने रख देता What है। was the blessing that he received because of showing this trust? और उसके कारण उनके जीवन में क्या आशीष आई। Right? Because he surrendered to God's will, because he obeyed God's command, God established his covenant with him. और उसने क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने समर्पण किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात मानी, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम के साथ अपना वाचा को बांधा। Right? This was a bigger blessing than what Abraham was surrendering. और ये उससे बढ़कर के हैं जो आशीष अब्राहम के पास था। Right? But it was the act of surrendering that brought that blessing. लेकिन ये आशीष कैसे आया? जब उसने समर्पण किया। In Luke chapter 1 verse 38, we know about Mary. और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 38 में हम देखते हैं कि मरियम समर्पण करती है। Right? Mary surrendered to God's plan. मरियम परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पण कर देती Mary है। accepted God's will. मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार It कर was लिया। against the popular belief and the customs of the time for a virgin to be pregnant. और उस समय के रीति रिवाज या उस समय की विश्वास से विपरीत था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। Right? Yet Mary surrendered to God's will. लेकिन फिर भी मरियम ने परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पण किया। What was the blessing? उसका आशीष क्या मिला? Right? The blessing was she brought forth the birth of Jesus Christ, which brought salvation for और mankind. आशीष क्या है? मरियम ने सारे मानव जाति के रचयिता और सारे मानव जाति का उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जन्म ली थी। Right? The surrendering brought such a big blessing. वो जो समर्पण जो है इतनी बड़ी आशीष को उनके जीवन में लेकर आया Just है। think for a moment if Mary would have been thinking about the world, her parents, her friends, and said, "No, I cannot do this." What would have been the state? यदि मरियम ने इस प्रकार सोची होगी कि मेरे परिवार क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसियों क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो क्या हुआ होता। She did not think of her life. She gave control to God. मरियम ने अपने जीवन के बारे में नहीं सोची, अपने जीवन की नियंत्रण को उसने परमेश्वर के हाथों में दे She दी। trusted in God's plan for her life. और परमेश्वर के पास उनके जीवन के लिए जो योजना है उस पर मरियम ने भरोसा की। Even if it meant going through the process of shame in this world, she accepted और that. उससे चाहे उन्हें बड़ी शर्मनाक परिस्थिति से होकर के गुजरना पड़े, फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास रखा। But we know how God provided. We do not read in the Bible anywhere that Mary was shamed or the customs of the people, the rituals of the people threw her out of their midst. Nothing of that sort happened. लेकिन हम वचन में इस बात को नहीं देखते हैं कि मरियम को किसी ने शर्मनाक किया या उन्हें गांव से अलग किया गया है, किसी और प्रकार की सता उनके ऊपर हुआ है, हम नहीं देखते हैं। God had already made a provision in form of Joseph to marry her and take care of her and the child. परमेश्वर ने पहले से यूसुफ को मरियम के लिए तैयार करके रखा था, जो उसे विवाह करेगी और अपनी पत्नी बनाएगी। So the surrender of Mary brought forth the blessing in form of Jesus Christ to bring salvation to humanity. मरियम के समर्पण इस आशीष को लेकर आया है जो यीशु मसीह है, जो पूरे मानव जाति के लिए उद्धार लेकर आया। And finally, the biggest example of all, Jesus. We see it in Matthew chapter 26, verse 39. In the Garden of Gethsemane, we see Jesus crying out to the Father. और हम आखिर देख सकते हैं मत्ती 26 के 39 में, जहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अपने समर्पण को दिखाते We हैं। have to remember Jesus is fully human over here. और हम यहाँ पर जानना जरूरी है कि यहाँ पर यीशु मसीह पूर्ण तौर पर एक इंसान है। He feels the pain. वो उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। He feels the hunger and the thirst like normal human beings. और जो भूख या प्यास को जैसे नॉर्मल इंसान महसूस करता है, वैसे यीशु मसीह ने भी महसूस किया है। He has the emotions and he also get hurt like a normal human being. और यीशु मसीह के पास भी वो इमोशंस है और वो भी दूसरों की तरह दुखी हो सकते हैं। And he is at this stage where he knows that he will be picked up and crucified and he will die a very kind of shameful and painful death. और यीशु मसीह जानते हैं कि वो अभी उस परिस्थिति में है जहां पर यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा और उसे मारेंगे, उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे, जो कि एक बहुत दर्दनाक और एक शर्मनाक प्रकार की मौत है। Yet
Jesus exemplified surrendering by giving into the Father's will. और लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने समर्पण होने का उदाहरण दिखाया, अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण He करते says, हैं। "Yet not my will, but thy will be done." और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी होनी Because of this surrender, we know what he has accomplished on the cross. और इस समर्पण के द्वारा हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या हासिल किया है। Because of this surrender, you and I are here today sitting in this hall. और इस समर्पण के कारण आज मैं और आप यहाँ पर प्रभु की आराधना कर रहे Because हैं। of this surrender, the burden of sin has been lifted from our lives. और इस समर्पण के कारण मेरे ऊपर से पाप का बोझ हटाया गया है। Because of this surrender, we were dead and now made alive. और इस समर्पण के कारण जो हम मरे हुए थे अब हम जीवित किए गए हैं। Because of this surrender, you and I now have eternal life for और us. इस समर्पण के कारण आपके पास और मेरे पास अनंत जीवन है। So a surrender by Christ to give in to God's will brought so many blessings for mankind. और परमेश्वर यीशु मसीह की समर्पण के द्वारा मानव जाति के ऊपर कई सारे आशीषें आई So in हैं। all these examples, you saw that surrendering or embracing God's will or surrendering to God's will, it involves trust and obedience. और ये सारे उदाहरण पर हम इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर के सामने समर्पण करने में हमें आज्ञा पालन करना और परमेश्वर पर भरोसा करना आता है। Please remember, my dear church, you might be doing so many things as a follower of Christ. You might be following Christ for so many years, but still there is something lacking. Still there is something और आप missing. इस बात को ध्यान रखें कि हम शायद कई सालों से परमेश्वर के अनुसरण करें, कई सालों से परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ कमी है। You know, that feeling is genuine because we still are holding on to something in our और life. ये जो सोच वो सच है क्योंकि हम आज भी हमारे जीवन की कुछ चीजों को अपने नियंत्रण में रख रहे We हैं। haven't surrendered our all to God. हम अभी भी हमारा संपूर्ण चीजों को प्रभु के हाथों में समर्पण नहीं किया You है। know, we sang the song, "All to Jesus I surrender." हमने जो गीत गाया है कि यीशु को मैं सब कुछ देता, But do we really mean that? क्या हमने उसको सच में उसकी मतलब को जानते हुए गाए? Are we truthfully singing that? क्या हम सच्चे मन के साथ उसे गा रहे हैं? He says, "All to him I freely give." और इस प्रकार कहता है कि मैं प्रभु के सामने सब कुछ दे देता हूँ Worldly pleasures I forsake. और जो भी दुनियावी इच्छाएं हैं, जो भी दुनिया की बातें उसे मैं त्याग देता हूँ। You know, we have become so monotonous in this particular world that it is like somebody is just putting a key and we are just doing our daily things. और हम इस दुनिया में ऐसे हो गए हैं कि किसी ने हमें चाबी लगा दिया और हम कुछ चीजों को करते आ रहे हैं। Right? But surrendering is completely different. Giving everything to God. लेकिन समर्पण होना बिल्कुल अलग है, हमारा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में दे देना When we है। do something like that, the purpose of our life will be fulfilled. और जब हम ऐसे कुछ करते हैं तो हमारे जीवन का पर्पस या हमारा उद्देश्य जो है वो पूरा होता We है। really need to see where I need to surrender to God. तो हमें जानना जरूरी है कि मुझे कहाँ समर्पण करना है What are the things that I am holding on to still? और वो कौन सी बातें हैं जिससे मैं अभी भी अपने नियंत्रण में रखता हूँ। You know, I remember one example of one gentleman when we were in the earlier church. He used to come to our church. और जब हम पुराने चर्च में थे तब वो एक व्यक्ति आता, उसके बारे में मैंने अभी याद किया। Right? He was a non-believer, but he used to come to church and he used to tell us that he has gone to a convent school. He has read the Bible so many times and he really likes the Christian environment and the teachings. वो गैर मसीही था लेकिन उन्होंने आकर के इस प्रकार कहा था कि वो हालांकि मसीही नहीं है लेकिन वो कॉन्वेंट स्कूल गया है और ये क्रिश्चियंस के बारे में उनका एक अच्छा विचारधारा है। Right? And he used to come for few months. He was coming regularly. और कुछ महीनों तक वो लगातार आता था And then he used to come and ask me and pastor, I want to take baptism. और वो उसके बाद पासवान और मुझसे आकर के बात किया था कि मुझे बपतिस्मा लेना है। Right? And he used to come regularly. We used to tell him, okay, we'll observe you, keep on coming to the church. As God leads, we'll take you for baptism and we'll baptize you. But you keep on coming. और हमने उनको सलाह दिया था कि आप लगातार चर्च आते रहें और हम आपको ध्यान रखेंगे और जब समय होएगा तब हम आपका बपतिस्मा देंगे। But he seemed very eager and he seemed very pushy and he used to come again and again. No, pastor, please baptize me. लेकिन वो बहुत उत्सुकता में था और बहुत बार-बार आकर के पूछ रहा था कि मुझे जल्दी बपतिस्मा दो। And he used to ask us, why are you not baptizing me? और वो पूछ रहा था कि आप मुझे बपतिस्मा क्यों नहीं दे रहे हो? We said, look, there is a process. God works in your life and we see transformation in your life. We see you accepting God and doing things according to His will.
then we will take you for तो baptism. हमने उन्हें कहा था कि हम पहले आपके जीवन में परमेश्वर की कार्य को होता हुआ देखेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होता हुआ देखेंगे और उसके बाद हम बपतिस्मा देंगे। Like this young rich man, he says, look, I am doing all these things. I know about all these things. So please baptize me. जैसे हमने वो बाइबल में पढ़ा है वैसे ये भी आकर के कहा था कि मैं ये सब जानता हूँ और मैं करना भी शुरू कर दिया है, मुझे बपतिस्मा दे दो। So we generally talking to him, we asked him, means have you surrendered your life? He says, yes. हमने उससे पूछा था कि क्या आपने अपने जीवन को समर्पण किया, तो उसने कहा हाँ। We asked him, do you understand what does it mean to surrender your life? तो हमने उनसे कहा था कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि समर्पण करने का अर्थ क्या है? उसने कहा हाँ। Everything that you have belongs to God. आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है। Your life belongs to God. आपका जीवन परमेश्वर का है। And he says, yes. उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। I said, your soul belongs to God. हमने कहा कि आपकी आत्मा परमेश्वर का है। Now he stopped for a moment. तो उसने एकदम से रुक गया, He started thinking. सोचने लगा। And he says, no pastor, my soul is my own. तो उसने कहा कि नहीं, मेरी आत्मा तो मेरा ही है। How can I give my soul? मैं अपनी आत्मा कैसे दे सकता हूँ? Then we said, you haven't really understood surrendering. तो हमने कहा कि इसका मतलब है कि आप समर्पण को पूर्ण तौर पर समझा नहीं है। Something you are still holding on to. और फिर अभी भी आप किसी एक बात को आप थामे हुए हैं। Something that you still want to have control on. आप अभी भी ऐसे एक चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जिस पर आपका नियंत्रण होना चाहते हैं। And sadly, that something is your soul for which you cannot do anything. और वो कुछ बात क्या है? वो आपकी आत्मा है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते So हैं। there is so much of misconception, misunderstanding about being a follower of Christ that we do not understand the concept of surrendering. और इस बहुत सारे गलत विचारधाराएं हैं यीशु मसीह को अनुसरण करने वालों के बात को लेकर के, और हम इस बात को नहीं समझते हैं कि समर्पण का अर्थ क्या है। So I'll just quickly talk about few points how you and I can look at surrendering. और इसलिए मैं अभी जल्द से जल्द कुछ बातों को आपको बताऊंगा कि आप और मैं कैसे परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं। Right? In order to surrender, very important, it is for you to first take a decision. और सबसे जरूरी बात है, सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले निर्णय लेना है। You have to decide. It is a conscious decision. और आपको ये निर्णय जो है स्वयं आपके बुद्धि से लेना है। You have to tell him that I would like to surrender my life to you. और आपको परमेश्वर को कहना है कि हाँ प्रभु मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता Right? हूँ। It doesn't happen automatically. और ये अचानक या अपने आप नहीं होता है। It is a conscious effort. You have to speak out. You have to tell him. और ये स्वयं आपको करना है जिसमें आप परमेश्वर को कहेंगे। Right? You need to put it into your daily prayers and meditation. और ये आपको लगातार रोज प्रार्थना करना और वचन मनन करना आपका जरूरी बात You होगी। have to keep on seeking God's will and you have to seek his works for your life. और आपको परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की काम आपके जीवन में होना है, इसके बारे में आपको ध्यान देना जरूरी है। Only through daily prayers and meditation can you align yourself to God's will. और सिर्फ रोज प्रार्थना करने के द्वारा और वचन मनन करने के द्वारा ही आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को मिला सकते हैं। Then you need to surrender on a daily basis to God's will. और हर दिन आपको समर्पण करना भी जरूरी है। Surrendering is not a one-time activity. समर्पण करना सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं It है। doesn't happen once in the life of a believer. और सिर्फ एक विश्वासी के जीवन में सिर्फ एक ही बार होगी ऐसा नहीं है। It is a continuous process of yielding to God's will. और ये लगातार समर्पण होने वाली बात है। This letting go and letting God take control of your life happens on a daily basis. और स्वयं को त्याग देना और परमेश्वर के हाथों में समर्पण हो जाना ये हर दिन की एक प्रक्रिया है। Sometimes it might happen many times in a day also. और कई बार एक दिन में भी कई बार हो सकता है। Now each time you are confronting an issue, a choice, a decision, you have to give it to God. और जब भी आप एक समस्या को सामना करते या किसी भी बात की सामना करते हैं तो आपको परमेश्वर के हाथों में उसे देना है। Don't jump in, be in control and take a decision, but seek God. Let him decide for your life. तुरंत कूदकर या तुरंत अपने विचार से आप निर्णय ना लें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पहले देखें। Then we need to do continuous study of the scriptures. और आपको लगातार वचन अध्ययन करना जरूरी है। Right? Reading the scriptures brings you closer to understanding who God is. और वचन को लगातार अध्ययन करना आपको परमेश्वर के साथ आपको नजदीकी में लाता है। You understand God's character and his purpose for your life. आप परमेश्वर की स्वभाव और परमेश्वर आपके जीवन में जो मकसद रखा है उसको आप जानने लगेंगे। You know the reason why we
have the weekly Bible studies or the home groups is because of this. और आपको पता है ना कि क्यों हम हफ्ते में हर बार हम होम ग्रुप्स या बाइबल स्टडी करते हैं, इसी कारण के लिए। You can ask anyone who's attending these home groups how much blessed that time is and how much God is revealing himself to them. और आप किसी से भी पूछ सकते हैं जो अटेंड करते हैं कि वो कितनी आशीषित समय है जहां पर हम वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में और जानते हैं। So studying the scripture on a daily basis is very important. और वचन को लगातार पढ़ना काफी जरूरी है। And finally, you need to find accountability partners for yourself. और आपको वैसे सहयोगी बनानी है जिसके साथ आप जिम्मेदार रह सकते हैं। You need to surround yourself with fellow believers. और आपको दूसरे विश्वासियों के साथ अपने आप को जोड़कर रखना है। You know, believers who are strong in the word of God. और जो विश्वासी परमेश्वर की वचन में मजबूत हैं, Believers who are strong in their faith and trust on God. और जो परमेश्वर के विश्वास और परमेश्वर की भरोसे पर जो मजबूत हैं, Believers who have surrendered their life to God. और जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण किए हैं, These believers can encourage you, they can challenge you when you are not going on the right track. और ये ऐसे लोग आपको मदद कर सकते हैं, आपको चैलेंज कर सकते हैं जब आप परमेश्वर की इच्छा से दूर जाते They हैं। can help you in surrendering yourself to God in a better fashion. और वो आपको मदद कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को पूर्ण तौर पर समर्पण कर सकें। So my dear friends, it is important to understand surrendering is the topmost thing a believer needs to do. और आप हमें ये समझना बहुत जरूरी है, समर्पण करना सबसे प्राथमिक बात है या सबसे बड़ी बात है जो एक विश्वासी को करना है। You cannot be a follower if you have not surrendered completely. और आप एक अनुयायी, परमेश्वर की अनुसरण करने वाला नहीं बन सकते जब तक आपने समर्पण नहीं किया हो। Your own self, this self has to die and be in Christ. और आपका स्वयं पहले मरना चाहिए ताकि आप परमेश्वर के साथ रह सकें। Until and unless you do not empty yourself, Christ cannot fill you और in. जब तक आप अपने आप को खाली नहीं कर देते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह आप में नहीं भर पाएंगे। As we embrace surrendering, as we come closer to God, we will find fulfillment, satisfaction, और joy in our life. जब हम समर्पण करते हैं, जब हम परमेश्वर की नजदीकी में और आते हैं, हम अपने जीवन में पूर्ति को देख पाएंगे, आनंद को देख पाएंगे, संतुष्टि को देख पाएंगे। Please remember, your Christian life is not how committed you are, but how surrendered you are. और आप इस बात को ध्यान देना है कि आपकी मसीही जीवन इस बात से तय नहीं करता है कि आपने कितना कमिटमेंट किया है परमेश्वर के लिए, लेकिन इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कितना समर्पण किया है Let us परमेश्वर all के stand लिए। up. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति।